جب ایک شخص مصر کے شاہی محلوں میں شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا تھا، عزت، دولت، طاقت، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک واقعے نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ شخص جسے لوگ عزت سے دیکھتے تھے، اچانک سب کچھ چھوڑ کر شہر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا، اکیلا، بھوکا، پیاسا، لمبے سفر پر نکل پڑا۔ ریت کے بے انتہا میدان، تپتی دھوپ اور تھکن سے چور جسم، مگر دل اب بھی زندہ تھا، رب پر یقین سے بھرپور۔ آخرکار اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب ایک مسافر کی دعا نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے اسے نہ صرف کھانا دیا بلکہ کھانا بنانے والی ایک نیک اور باحیا بیوی بھی عطا فرمائی۔ جی ہاں، یہی وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، ایک ایسی پاکیزہ، حیادار اور نیک دل لڑکی جس کی ایک ملاقات نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ کیا واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نہیں بلکہ دو بیویاں عطا کی گئیں؟ اور ان کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام نے کن شرائط پر ان کا نکاح کیا؟ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے۔ آپ جوان، مضبوط اور نہایت باحوصلہ تھے۔ ایک دن جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک بنی اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی۔ بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ آپ آگے بڑھے اور ایک گھوسا مارا۔ وہ گھوسا اتنا زوردار نکلا کہ قبطی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ خبر مصر میں آگ کی طرح پھیل گئی، یہاں تک کہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئی۔ فوراً حکم دیا گیا کہ موسیٰ کو ہر حال میں گرفتار کیا جائے۔ مگر ابھی رات دھلی بھی نہ تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، دربار والوں نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا، نہ کھانے کو کچھ، نہ سواری، اور سامنے طویل سنسان سفر۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بھوک، پیاس اور تھکن سے چور ہو گئے، مگر دل میں ایک ہی یقین تھا، جس رب نے یہاں تک پہنچایا ہے وہی آگے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ آخرکار جب وہ مدین کے کنارے پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ کئی چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ایک طرف دو لڑکیاں شرم و حیا کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہیں سے وہ ملاقات شروع ہوئی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دو لڑکیوں کو دیکھا تو دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ قریب جا کر پوچھا، تم دونوں اپنے جانور پیچھے کیوں روکے کھڑی ہو؟ انہوں نے مؤدبانہ جواب دیا، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نہ ہٹا لیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم، غیرت اور مدد کا جذبہ جاگ اٹھا۔ آپ نے بغیر کچھ کہے خود ہی کنویں پر جا کر وہ بھاری پتھر ہٹا دیا جسے 10 آدمی مل کر بھی نہ ہٹا سکتے تھے۔ پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا اور پھر تھکے قدموں کے ساتھ ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے۔ بھوک کی شدت تھی، بدن نڈھال، مگر ایمان کی حرارت زندہ تھی۔ وہیں بیٹھ کر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور وہ تاریخی دعا مانگی جس نے تقدیر کا فیصلہ بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری بھیجی ہوئی بھلائی کا سخت محتاج ہوں۔ دوستو، یہ دعا رد نہ ہوئی، کیونکہ جس دل سے نکلی تھی وہ دل سچا، ٹوٹا ہوا اور بندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ سامنے ایک منظر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدل دی۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور نرم آواز میں کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس احسان کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر کیا ہے۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب ایک بھوکے، تنہا مسافر کے لیے رب نے نجات، عزت اور مستقبل کے دروازے کھول دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل پڑے، مگر یہاں دیکھیے ان کی امانت اور پاکیزگی۔ آپ نے فرمایا،
मैं रास्ता नहीं जानता, तुम मेरे पीछे चलो। जहां रास्ता बदलना हो वहां एक कंकरी फेंक देना, मैं समझ जाऊंगा। कितनी अजीम मिसाल थी हया और किरदार की, और यही हया, यही अमानत बाद में उनके नसीब में निकाह बनकर लिखी गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बुज़ुर्ग के सामने पहुंचे तो वो कोई आम शख्स नहीं थे, बल्कि नबी खुदा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया, बैठे और पूरा वाक़या सुनाया कि कैसे एक गलती के सबब वो मिस्र छोड़ने पर मजबूर हुए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिमों के इलाके से निकल आए हो, ये जगह उनकी हुकूमत से बाहर है। फिर उनकी बेटी यानी हज़रत सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद से अर्ज़ किया, अब्बा जी, उन्हें अपने पास उजरत पर रख लीजिए, क्योंकि जो उजरत पर रखा जाए सबसे बेहतर वो होता है जो ताकतवर और अमानतदार हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुमने कैसे जाना कि वो कवि भी हैं और अमानतदार भी? सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुअद्दिबाना अर्ज़ किया, अब्बा जान, कुएं का वो पत्थर जो 10 आदमी मिलकर ना हिला सके, उन्होंने अकेले हटा दिया, ये उनकी कुव्वत की दलील है। और जब मैं उन्हें बुलाने गई तो उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा, तुम पीछे चलो, ये उनकी अमानतदारी है। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक सफूरा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरे साथ काम करो, और अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी मुशक्कत में डालूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे नेक लोगों में पाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर, ये बात तो मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों में से जैसे चाहूं पूरा कर दूं, मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे और अपना हाल बयान किया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने निहायत शफकत, नरमी और हिकमत के साथ उनकी बात सुनी। आपने महसूस किया कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि निहायत नेक, बाकिरदार और खुदा तरस इंसान है। चुनाचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 साहबजादियों के बारे में मशवरा फरमाया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन लड़कियों के नाम सफूरा और लिया थे। बाज रिवायात में सफूरा और शरका का जिक्र है, जबकि कुछ अहले इल्म ने बड़ी बेटी को सफर और छोटी को सफीरा कहा है। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन जैसे इब्ने असाकिर, वहब बिन मंबा, बज़्ज़ार और तबरानी सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह छोटी बेटी सफूरा से हुआ था। इसी हजरत सफूरा के बारे में कुरान मजीद में जिक्र है कि वही लड़की थी जो शर्म हया से चलती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थी और अपने वालिद से अर्ज किया था, अब्बा जान, इन्हें मजदूर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन शख्स वही है जो ताकतवर और अमानतदार हो। दोस्तों, यही हया, यही दानिशमंदी हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वो मकाम दे गई कि नबी वक्त ने उनसे निकाह फरमाया। शादी से पहले वो अपने वालिद की खिदमत गुजार बेटी थी और शादी के बाद अपने शौहर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक वफादार, सालेहा और फरमा बरदार बीवी बनकर रहीं। रिवायत में आता है कि वक्त गुजरता गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ वो तमाम वादे के साले खुलूस, मेहनत और वफादारी से पूरे किए। उनकी अज़दिवाजी जिंदगी मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर गई। हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सालेहा, बाहया और नबी के शायान शान किरदार रखने वाली बीवी साबित हुई। और फिर एक दिन जब मुद्दत पूरी हो गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना से कहा, आओ हम वापस अपने वतन चलते हैं। रात का वक्त था, आसमान पर अंधेरा छाया हुआ। आप अपने खानदान के साथ सहराओं से गुजर रहे थे कि अचानक दूर एक पहाड़ी की सिमत से रोशनी दिखाई दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहरो, मैं वहां से कोई खबर लाता हूं, या शायद आग का कोई शोला मिल जाए जिससे तुम गर्मी हासिल करो। दोस्तों, वो रोशनी दरअसल कोहे तोर की थी। वहां जाकर जो मंजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो दुनिया के लिए एक नया बाब बन गया। अचानक एक आवाज गूंजी, ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूं,
सारे जहानों का रब। ये वो लम्हा था जब एक मुसाफिर, एक मजदूर, एक मजलूम अल्लाह के हुक्म से नबी बन गया। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वादिये तौर में वही नाजिल हुई तो वो लम्हा सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि तकदीर की तकमील का लम्हा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे अपने पैगाम के लिए चुन लिया है। जा फिरौन के पास, वो सरकशी में हद से गुजर चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरे सीने को कुशादा फरमा, मेरी जबान की गिरहें खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे साथ मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने तेरा साथ कबूल किया, जा हम तुम्हारे साथ हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे, दिल में नबूवत की रोशनी और लबों पर अल्लाह का नाम। वो अपनी बीवी हजरत सफूरा और बच्चों के पास पहुंचे। हजरत सफूरा ने देखा तो चेहरे पर एक खास नूर और गैर मामूली इत्मीनान। पूछा, मूसा, ये चेहरा क्यों दिमुक रहा है? ये कैसी रोशनी है? मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, सफूरा, आज मेरा रब मुझसे हम कलाम हुआ है। मैं अब सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि अल्लाह का पैगंबर बन चुका हूं। ये सुनकर हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने झुककर शुक्र अदा किया। वो जानती थीं कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर ईमान वालों के कदम कभी पीछे नहीं हटते। कुछ दिनों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हुए, वही सरजमीन जहां कभी जान बचाकर भागे थे। अब अल्लाह के हुक्म से दावत हक लेकर वापस जा रहे थे। दोस्तों, ये मंजर कितना अजीब होगा। एक शख्स जो कभी फिरौन के दरबार में शहजादे की तरह रहता था, आज वही दरबार में रसूल बनकर दाखिल हो रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने पहुंचे तो उसने तंजिया लहजे में कहा, ए मूसा, क्या तू वही नहीं जो एक इंसान को मारकर भाग गया था और अब मेरे सामने पैगंबर बनकर आया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून से जवाब दिया, हाँ, मैं वही मूसा हूं, मगर आज मैं अपने रब की तरफ से हक लेकर आया हूं। मैं तुझसे कहता हूं, अल्लाह को मान ले और बनी इसराइल को आजाद कर दे। फिरौन हंसा और गुरूर से बोला, क्या मेरे सिवा भी कोई रब है ए मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसको रास्ता दिखाया। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला और वो जिंदा अजदहा बन गया। पूरा दरबार दहल गया। फिरौन के जादूगर साकित रह गए, क्योंकि वो जान गए कि ये जादू नहीं बल्कि सच्चाई है। मगर फिरौन के गुरूर ने उसके दिल पर पर्दा डाल दिया। उसने कहा, ये तो जादू है, कल मैं अपने तमाम जादूगरों को बुलाऊंगा, देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों, अगले डिमेंस से सबसे बड़ा मैदान तैयार किया गया। लोग दूर दूर से जमा हो गए। फिरौन अपने तख्त पर गुरूर से बैठा और उसके हुक्म पर सैकड़ों जादूगर रस्सियां और लकड़ियां लेकर मैदान में उतर आए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, पहले तुम डालो या हम डालें? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले डालो। उन्होंने रस्सियां और लकड़ियां फेंक दी और अल्लाह के हकम्पिन से वो जमीन पर सांपों की तरह रेंगने लगी। मैदान खौफ से भर गया। लोग चीख उठे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा डाला और वो असा एक अजीम अजदहा बनकर उन सब रस्सियों और सांपों को निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर हैरान रह गए। वो जान गए कि ये जादू नहीं, ये रब मूसा की कुदरत है। फौरन सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का गुरूर टूट गया, मगर उसका जुल्म बाकी रहा। उसने ईमान लाने वालों पर जुल्म सितम ढाया, मगर ईमान की रोशनी फैल चुकी थी। इधर मदीन में हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा रातों को जागकर अपने शौहर के मिशन के लिए दुआएं करती रहती। वो सब्र, वफा और यकीन की अलामत बन गई। एक ऐसी खातून जिनका नाम कुरान में नहीं, मगर जिनकी दुआ और साबित कदमी तारीख के हर सफ़े पर लिखी गई। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर अब सिर्फ दावत का नहीं रहा था, बल्कि आज़ादी का आगाज बन चुका था। वो वक्त आ गया जब बनी इसराइल को गुलामी की जंजीरों से निकालकर अल्लाह के रास्ते पर लाया जा रहा था। वक्त गुजरता गया, निशानियां जाहिर होती गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने एक के बाद एक मोजज़ा पेश किया। ये मोजज़े सिर्फ निशानियां नहीं थे,
बल्कि इंसान के गुरूर को तोड़ देने वाले इलाही पैगामात थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि फिरौन समझ जाए, अपनी सरकशी छोड़ दे, मगर उसका दिल पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों के सामने वो निशानियां जाहिर हुईं जिन्हें देखकर बड़े बड़े बादशाह कांप जाते। पहला अजाब नाजिल हुआ, पानी का खून बन जाना। मिस्र का दरियाए नील, जिस पर उनकी जिंदगी का दारोमदार था, अचानक खून में बदल गया। लोग जब पानी लेने आते तो घड़ों और मिटकों से पानी के बजाय गाढ़ा खून निकलता। मवेशी प्यास से बलकने लगे, खाने पीने की हर चीज नापाक हो गई। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि जहां बंदी इसराइल रहते थे, वहां का पानी बिल्कुल साफ और शफ्फाफ रहा। फिरौन ने यह मंजर देखा, मगर बजाय इबरत लेने के उसे जादू करार दिया। जब मुसीबत बढ़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अपने रब से दुआ करो, अगर ये मुसीबत टल गई तो मैं ईमान ले आऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने अजाब हटा दिया। मगर जैसे ही राहत मिली, फिरौन ने फिर वादा तोड़ दिया। फिर दूसरा अजाब आया, मेंढकों का। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, हर तरफ सिर्फ मेंढक ही मेंढक। घरों में, बावर्ची खानों में, बिस्तरों पर, हत्ता के बादशाह के तख्त और फिरौन के ताज के अंदर तक। लोग खाना खाते तो प्याले में मेंढक कूद पड़ता, सोते तो जिस्म पर उछलने लगते। पूरा मिस्र मेंढकों के शोर, गंदगी और अजाब से भर गया। लेकिन फिरौन का दिल फिर भी नर्म ना हुआ। उसने वही कहा, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने मेंढकों का अजाब हटा दिया। मगर फिरौन ने एक बार फिर वादा तोड़ दिया। फिर नाजिल हुआ तीसरा अजाब, जाओं का। जमीन की मिट्टी जाओं में बदल गई। वो इंसानों और जानवरों के जिस्मों से चिमट गई। न सोना मुमकिन था, न खाना। पूरी सल्तनत बदहाली में डूब गई। फिरौन के दरबारी और जादूगर चीख उठे, ये जादू नहीं, ये खुदा का कहर है। मगर फिरौन के कानों पर जूं तक न रेंगी। फिर आया चौथा अजाब, मक्खियां और खूनखार हशरात। वो हर जगह मिंडलाने लगे, लोगों के जिस्मों पर काटने लगे। खाने पीने की हर चीज नापाक हो गई। लोग चला उठे, मगर फिरौन बाज ना आया। फिर आया पांचवां अजाब, मवेशियों पर बीमारी। ऊंट, गायें, बकरियां सब मरने लगी। जमीन पर मुर्दा जानवरों की बदबू फैल गई। मिस्र की मईशत तबाह हो गई, मगर फिरौन का गुरूर कायम रहा। अल्लाह ताला ने फिर छठा अजाब भेजा, बदन पर फोड़े और जख्म। लोगों के जिस्मों पर छाले फूट पड़े, दर्द से तड़पने लगे। कोई मरहम कारगर ना हुआ, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर ओढ़े रहे। फिर नाजिल हुआ सातवां अजाब, जबरदस्त ओले। आसमान बादलों से भर गया, बिजलियां गिरजने लगीं और पत्थरों जैसे ऊले बरसने लगे। दरख्त टूट गए, फसलें तबाह, घरों की छतें गिरने लगीं। मंजर कयामत का सा था। कौमे फिरौन चीख उठी, ए मूसा, अपने रब से कहो हमें बचा ले, हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अजाब हट गया। मगर जैसे ही आसमान साफ हुआ, फिरौन ने फिर कहा, यह तो वक्ती जादू था। फिर आया आठवां अजाब, टिड्डी दिल। आसमान सियाह हो गया, जैसे सूरज छुप गया हो। लाखों करोड़ों टिड्डियां मिस्र पर उतर आईं। उन्होंने खेत, बाग, दरख्त सब कुछ चट कर डाला। जमीन बंजर हो गई। हर अजाब के बाद वो वादा करता, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो, मैं मान जाऊंगा, तुम्हें जाने दूंगा। और जैसे ही मुसीबत हटी, वो कहता, मैं तो खुद खुदा हूं, मूसा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसके दिल पर हुरूर का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि हक वाजे होने के बावजूद इनकार किए जा रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ वाकयात नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से बार बार तंबीह थी कि इंसान अपनी हद में रहे, मखलूक खालिक बनने की कोशिश न करे। लेकिन जब इंसान के दिल पर जद, गुरूर और तकब्बुर गालिब आ जाए तो अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। आखिरकार वो दिन आ गया जब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ए मूसा, रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, डरना नहीं, तुम सब महफूज रहोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और मिस्र की गलियों में गहरी खामोशी थी। हजारों गुलाम अपने घरों से निकले, उनके चेहरों पर उम्मीद थी। आज वो रात थी जब सदियों की गुलामी खत्म होने वाली थी। दूसरी तरफ जब फिरौन को खबर मिली तो वो अपने लश्कर के साथ उनके पीछे दौड़ा।
फिरौन के जंगी घोड़े, तलवारें और सवारियां जमीन गरज उठी। पीछे फिरौन का लश्कर और सामने दरियाए नील। बनी इसराइल के कदम रुक गए। वो घबराकर कहने लगे, मूसा, अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब इंसान की उम्मीद खत्म और ईमान शुरू होता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अपना आसा दरिया पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा और समंदर दो हिस्सों में फट गया। पानी पहाड़ों की तरह दोनों तरफ जम गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल हैरत से देखते रह गए। फिर सब इस रास्ते पर चल पड़े। एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ मोजज़ा। फिरौन ने ये मंजर देखा तो गुरूर में आकर बोला, अगर मूसा का दरिया फट सकता है तो मेरा भी रास्ता बनेगा। वो अपने लश्कर के साथ इसी रास्ते पर उतर गया। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल दूसरी तरफ पहुंचे, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अब अपना आसा दोबारा मारो। पानी दोनों तरफ से टूट पड़ा। पहाड़ जैसी मौजें उठीं और फिरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। आखिरी लम्हे में वो चलाया, मैं ईमान लाया कि मूसा और हारून के रब के सिवा कोई खुदा नहीं। मगर जवाब आया, अब, जबकि पहले तूने इनकार किया और जमीन में फसाद फैलाया। यूं फिरौन की लाश समुंदर ने किनारे पर अगल दी ताकि आने वाली नस्लों के लिए गुरूर के अंजाम की जिंदा निशानी बन जाए। दोस्तों, इस लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर सजदाए शुक्र में सर रखा। उनके गिर्द वही हजारों लोग थे जो कभी गुलाम थे, आज अल्लाह के करम से आजाद थे। और दूसरी तरफ मदीन में हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने रब से यही दुआ मांग रही थीं, ए मेरे रब, मेरे शौहर के मिशन को कामयाब फरमा। अल्लाह ने इस साबिर बीवी की दुआ कबूल फरमाई, क्योंकि एक नबी की कामयाबी के पीछे हमेशा एक ईमानदार और दुआगो औरत का सब्र छुपा होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, हया और वफादारी की जिंदा तस्वीर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर महल की शान व शौकत से नबूवत की अजमत तक, और हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सफर खामोश खिदमत से अब्दी इज्जत तक, दोनों हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है, बस शर्त ईमान की है। ये वाकया सिर्फ कुरान करीम में ही नहीं, बल्कि तौरात और इंजील में भी बयान हुआ है। तीनों मज़ाहिब, मुसलमान, मसीही और यहूदी, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को चीर कर रास्ता बनाया। लेकिन सवाल ये है, ये हुआ कैसे? यही वो सवाल है जिसने आज के साइंसदान नहीं, बल्कि एक नबी के साथ वफा में पाई। दोस्तों, जिंदगी में जब तुम्हें मुश्किल रास्ते, बंद दरवाजे या अंधेरे समुंदर नजर आएं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद करना। यकीन रखना कि जिस खुदा ने समुंदर को चीर कर रास्ता बनाया था, वो आज भी अपने बंदों के लिए रास्ते बनाता है। अगर ये ईमान अफरोज दास्तान आपके दिल को लगी है, तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये रोशनी किसी और दिल तक भी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।